So, very good evening to everybody gathered here. On behalf of the Mumbai Press Club, the Mumbai Marathi Patrakar Sangh, Participatory Urban Design and Development Initiative, Sanctuary, Vanashakti, Question of Cities, and the family of late Darrell De Monte, I welcome all of you here to the 4th Darrell De Monte Memorial Lecture. Many of you have been to the 3 previous ones. I'm privileged to invite you, to welcome you to the 4th one today. My name is Smriti Kopikar. I'm one of the many journalists that Darrell had immense influence on, mentored, and also gave many of my generation a way to see the city, a way to see the environment. I'll be taking you through the evening, and I'm going to start by inviting our keynote speaker to the dais, Dr. Rajendra Singh. Please give him a round of applause. With him, our friend and a name we all know very well, Bittu Sehgal. And the chairperson of the Mumbai Marathi Patrakar Sangh, Sandeep Chavan. He is known as the Waterman of India, and he has a little lovely story on how he came to be called the Waterman of India, which if we have time, I shall share later through the evening. On the occasion of the 4th Darrell De Monte Memorial Lecture, Dr. Rajendra Singh is going to talk to us about Jal, Jungle, Zameen from Aravali to Are. Aravali is his home ground, and Are is ours, so to speak. In his work, he has impacted more than 18,000 villages and ensured कि कम से कम 23 नदियाँ पुनर्जीवित हो गई हैं. I'm sure he's going to share a lot more. और जल और जीवन का जो नाता है वो और कोई हमको इस तरह नहीं बता पाएगा जैसे राजेंद्र सिंह जी बताते हैं. So we're going to wait for him, we're going to wait to hear him. Meanwhile, I will invite Mr. P.K. Das, again a name very familiar and a friend to many of us in the room, to speak a little bit about Darrell De Monte, the person, the journalist, the conscience keeper in a way of the city. And I must say this, that Darrell remains one of the few or possibly the only editor to have been resident editor of 2 of the biggest papers in the city, the Indian Express and the Times of India. That was a different generation, a different era, but PK, please come and tell us a little more about Darrell. Thank you. Thank you. Rajendra Prasad ji, we are extremely happy that you could come and join us and to deliver the 4th Darrell De Monte Memorial Lecture. I've been meeting Rajendra Prasad ji, Rajendra Singh ji, sorry, over the last week, maybe 4 times. And all the time, you know, we've spent more than 2 to 3 hours each time we've got together. And we've discussed many things. And he's been truly so inspiring. Rajendra ji, I am truly very, very inspired. Hearing from you the work that you're doing, your commitment, your feet on the ground, and your connection with people, places, and the natural ecology. It's truly remarkable. As Smriti mentioned, he's known as the Waterman of India. Rajendra Singh ji is not, and I must say this, is not a siloed environmentalist. He is a social thinker
and an active community organizer at the grassroots level, deeply connected with people and places. And that's really very rare to find. I will very quickly recap the 3 memorial lectures before this one. The first Darrell de Monte Memorial Lecture was in the year 2023, was delivered by the noted environmentalist, environmental economist, Dr. Pawan Sukhdev, who told us, and I quote, "Nature does not send us invoices." The second memorial lecture was delivered in the year 2024 by Sunita Narayan, a distinguished environmentalist and a determined fighter, who told us about the need for urgent intervention in the ongoing environmental injustices. The third memorial lecture, which was last year, was delivered by Ramachandra Guha, an eminent historian and an environmentalist, and author of many books, who revealed to us the origins of Indian environmentalism and the significant thoughts and writings of 10 remarkable individuals from within an Indian context. Interestingly, Mira Behan comes as a big revelation, particularly when she opposes Nehru for promoting the big dams. Mira Behan's opposition to the big dams and the big mega projects reminds us of what Darrell writes in his first book, Temples or Tombs, published in the year 1985, with reference to Nehru portraying the big mega projects as temples of modern India. And I quote, "How these modern day or big mega projects as portrayed by Prime Minister Nehru turned out to be tombs, placing a huge burden on people. The case studies he cites in the book also showed an undercurrent of violence against people and the environment." Unquote. Rajendra Singh ji, Mumbai, as we knew, is a city on the water, or was a city on the water. Tragically, this incredible asset, water, which has been the center point of your activism and engagement, has been deliberately ignored and abused by successive governments and little realized by most people. There were 5 rivers, Mithi, Oshiwara, Dahisar, Poisar, and Chenna. Also, over 800 kilometers of water courses of the estuary have been attacked, concretized, and defaced, as being done to most of the rivers across India, and turned to sewage disposal channels, now referred to as the ugly, stinking nallas of Mumbai. On the other hand, the 149 kilometers coastline too has been treated as the backyard. For long, landfilling and construction in the waters has been undertaken without an iota of concern for the ecology that sustains our life, indeed our health and well-being. As a result, we have turned our backs to the water. Today, public mind is under siege, and popular imagination, crammed by the prevailing model of urban development that is synonymous with exclusivity and exclusion and marginalization of most people, including the vast and diverse extent of the natural areas that constitute 1/3 of the total area of the city. What Darrell writes in his book, Temples and Tombs, published in 1985, is relevant to this day. And here's a further, and I quote, "The experience gained in the last 3 decades has convincingly shown that there can be no rational and equitable economic development without environmental conservation. Environmental degradation invariably results in increased economic inequalities in which the poor suffer the most." And he continues, "Environmental degradation and social injustice are 2 sides of the same coin."
unquote. Today in Mumbai, a brand new network of coastal highway along the 110 hectares of land filling, with 10 million tons of rocks and soil into the sea, has generated an imagination of another waterfront, the making of a coastal forest. While a planned destruction of the eco-sensitive areas of RA and large parts of the Borivali National Park is actively underway. The destruction of these two areas is actively underway. Further in the wetlands and the waters of the Malad Creek, the ongoing destruction of 45,000 mangroves to build an extension of the coastal highway is underway. Both the fallout of the big buck projects and the continuing acts of violence perpetrated on people and nature and over time normalized is ensuring a dangerous environmental future for the city and all its people. Despite the climate crisis with anthropogenic consequences we are now subject to. Here it is pertinent to read Darrell when he writes in his second book, Ripping the Fabric, The Decline of Mumbai and Its Mills, published in the year 2022. And I quote, "We never asked that question, developing towards what? It is a reflection of our prevalent culture that development has come to mean a mere increase in consumption and production of material goods and services. Development is not a product that can be obtained with economic growth. On the contrary, it is a process that enables all levels of society, individual, community, and nation to become more self-reliant and more independent in choosing and deciding their own future." Unquote. Darrell fought a significant number of socio-environmental battles. With Kisan Mehta and others of the Save Bombay Committee, he successfully led the movement against a proposal by the government of India to build the NIBM headquarters, proposed in the waters off Carter Road, had forced then the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, to intervene and decide to shift the headquarters to Pune. Darrell considered ecology to be inclusive and wanted the restoration of the relationship between nature and people for a sustainable planet. As the founder trustee of Mumbai Waterfront Center, Darrell, along with the citizens of Bandra, successfully led a movement for the reclamation of the waterfronts and the making of open, unbarricaded promenades, including the restoration of the mangroves along Carter Road. Also with the citizens of Juhu, ensured a major victory in restoring the iconic Juhu beach, ensuring free and open access to all the people. As a result of these movements, over 7 to 8 kilometers of the coastline got protected from vandalism. Today, they are popular public spaces for people to meet and loiter in the open spaces-starved city of Mumbai. Also, Darrell founded the Federation of Environmental Journalists of India and spearheaded it for years. He went on to make it a part of the International Forum of Environmental Journalists, of which he was the chairperson. Darrell was affable, approachable, warm, and genial. A man having reached such distinguished heights had no pretension. He was simple, open to meet and listen. He made every person comfortable to talk and interact with him, but never minced his words, a man of principles and enduring honesty. Darrell, unfortunately, left us all in 2019. To share experiences and to discuss our way forward, it is important we continue with Darrell de Monte Memorial Lectures and bring forth
ideas of persons of stature in the environmental ecological field so that we can listen, reflect, and deliberate together. This is a way to remember Darrow, but also a way to take his legacy forward. Thank you. Over to Smriti. Thank you, PK. I think many of us in the room carry very warm memories of Darrow. To begin, I would invite Sandeep Chavan to felicitate our keynote speaker for the day. Thank you, Sandeep ji. The organizers thought that while Rajendra Singh ji is here and we're going to listen to him and his stories and the Aravalis, he is acquainted, but we would like to acquaint him directly in the first person about some of the issues that we've been facing in Mumbai, which PK referred to, but in a very focused way on the Sanjay Gandhi National Park and the mangroves. And before we listen to you, Rajendra ji, हम थोड़ी सी एक 5-10 मिनट इस इशू के बारे में बात करने के लिए हमने 2 लोगों को आमंत्रित किया है. Stalin, if you can come and we'll first listen to Stalin from Vanashakti, you've heard. He's fought many a battle in this city for environment, but specifically on the battles he's fighting today and how to take them forward. I've requested him to keep it as short as possible. Thank you. Good evening and thank you, Smriti. I have just keep putting you at ease by starting a stopwatch so I won't exceed the time. So my time starts now. First of all, respects to Daryl. Thank you to his family for organizing this religiously every year. We just heard Mr. P.K. Das talk about the mangroves, so I'll focus directly on to those mangroves issue. If we can start the presentation. This is just, you're supposed to introduce yourself, so this is the first slide. Vanashakti was founded by Mrs. Meenakshi Menon, Namita Ghosh, and late Peter Menon. These are the key areas which we work. Vanashakti has fought the maximum number of PILs. Just day before, last week, someone has attacked us on Twitter saying that 90% of the PILs of Mumbai are filed by Vanashakti. Someone should investigate them. Please do, by all means. Next. So we are a city blessed with 2 protected areas. And we have 3,500 acres of mangroves, of forests which have not been notified, which we already declared 2 years ago. But still the government is sleeping on it. We will be taking that up. So what's going wrong with it? Mumbai is being destroyed by sustainable development. So sustainable development itself is an oxymoron. Next. So this is what the government is defining sustainable development as. It is an organizing principle for meeting human development goals while maintaining the ability of natural resources, systems and ecosystem services on which society depends. So every project today, when you see the EIA report, the project report and the court findings, always talk about that this is sustainable development. So we'll see how sustainable this is. Next. These are some projects which I think someone can take a photo of this and study each of these projects and how destructive they were and what has happened to the environment because of these projects. Next. So this is a latest example is about the coastal road, a road from nowhere to nowhere, I would say. It's starting from Churchgate and goes right up to Kandivali. Now they are saying they are taking it from Versova to Bhayandar. It's going to go from Bhayandar to
Palghar, from Palghar to Dhanu, and from Dhanu to Daman. This project has been split into parts and bits and pieces. Permissions are being sought for this project. Next. So next. So this is the reality that Mumbai, you can see the crowded trains, and 2005, when the Metro 3 project was going on, Vanashakti and the Save Aare movement was continuously attacked that people are dying, falling from trains, and you people are fighting against the good project. Now that metro has been running for 2 years, and till last year, 2,500 people have died, and they continue to die. So let's not go there. The traffic hasn't reduced. The air quality, which was supposed to become super clean, and like the theories were that even 4,000 trees cannot match their carbon sequestration due to metro. So that was the kind of logic that was being perpetuated. Next. So this is the fact. Mumbai's local trains carry 75 lakh people every day. Mumbai's buses carry 30 lakh people, and Mumbai's metro carry 10 lakh people. And they are celebrating this 10 lakh figure. Where should the investments go? What are the priorities? Next. So they say that this was done to reduce this coastal road is being made to reduce the traffic. Metro 3 was also supposed to reduce traffic. Next. So the actual reason is here. We found out in the DPR that it is to facilitate the growth of MMR. The road connectivity from Nariman Point to Palghar is needed with the availability of developable land. The land is not in Mumbai, it's in Palghar. To develop land in Mumbai, Mumbai's ecosystems will be sacrificed. So that's the bottom line. Next. So this is the environmental damage due to this project. We are losing trees, forests, mountains, everything. Mountains because quarrying is going to happen, and that quarried material is going to be dumped into the sea on the mangroves. Nobody is talking about that. Next. So here in the report they say that the effect of this reclamation could damage the beaches. So the beaches, are they supposed to be sacrificed for these development projects? Isn't it a natural heritage which nobody should touch or endanger in any way? No, but this aspect also nobody is talking about. Neither the courts are talking about it, nor the government is talking about it. Next. So, next. So here they said the 103 hectares of mangroves is going to be destroyed, and instead of that 103 hectares of mangroves, which is carrying about 45,000 trees, 1,37,000 trees will be planted in the Bhayandar area. So this was survey number 342, and the very, very heartfelt plea that chain link fencing will be provided. Every year we'll come and give you a report. 1,37,000 mangroves have been planted. So we said we'll go and check it out. Next. So this is a site, and when we checked it on Google Earth, we found that the plantations had started in 2022, and they were trying to pass it off as being done for this road. Next. So this is the land seen on Google Earth. The channels were ready. The mangrove saplings are there. They are growing already. Next. So this compensation for this land which is lost in Mumbai is going to be done in the forests of Chandrapur, Vihirgaon. Okay. And we said, okay, let's, for the sake of accepting of brevity, let us say that, okay, you're going to Vihirgaon. What happens in Vihirgaon? Next. The land which is allotted for this so-called afforestation or compensatory diversion is a land which is reserved for grazing, for construction and firewood. So nobody investigates this. We've got this out. Now they are running and trying to change the records. Just like we caught them in Bhayandar. Next slide, I'll show you what happens in Bhayandar. The fishing community, yes, they are the sufferers always. Next. Just, can we play this video? It's just 15 seconds. There's a video on it. This is the site where the mangroves are being planted. 1,37,000 mangroves will be planted here. Where is the space? It's an insult to human intelligence to say that you're going to do it here. Next.
Next. So this was the state of the affairs on the ground there. The channels are dry. Those sticks that you see on the side of the channels, that are the 1,37,000 saplings. This is how we are taken for a ride. So what they have done, the existing trees, they have put channels through it, and they are saying we are going to plant along the channels, and 1,37,000 has been done. So now we've caught them, so they have backtracked and said, no, we are repairing it now. Next. The Malad Creek has already lost 1 lakh mangroves for a sewage treatment plant. And the same forest department and the municipal corporation went to the High Court and said, okay, we want to cut more mangroves. Nobody objected. Next. 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 So this is what? Now, this is the exchange which is going on. We give you chickus and we take mangoes from you. Okay. Mangroves sequester 3 times the carbon which the terrestrial trees do. So what they are doing is they are taking away mangroves in Mumbai and planting trees in Chandrapur. So this absurd trade-off continues. Next. This is the High Court order where the High Court observes that 1,37,000 mangroves will be planted in Mira Bhayandar. We showed you what happened in Mira Bhayandar. Now the courts have to come in and do it again now. Next. So whatever is planted, this is an example for the Kharghar Vikhroli transmission line, mangroves were cut and the trees were planted in Shahpur. There is no connection with mangroves. So we had to accept it. But what happened? 98,000 trees are on the slaughtering block in Shahpur now. So whatever is being planted is being chopped away after 2-3 years. So this degradation is continuous. Don't buy the story that it is being really compensated. Next. So now after we caught them in Bhayandar, they are saying 255 hectares in Palghar is going to be brought under the plantation process, compensatory afforestation. Where was this land earlier? After we catch them goofing up, then they bring in these areas. And yes, these areas will also vanish. Why? Because what is coming up there? Wadhwa Port, Palghar Airport, Sidco MIDC, real estate townships, all of this is going to come up in Palghar. Palghar is going to be the 4th Mumbai. And you think those mangroves are going to survive there? Sorry, it's wishful thinking. Next. So there is no system of post-project monitoring or accountability. Do your project and go away. The flamingos stopped coming to Mumbai. They have not turned up this year. Very few of them have come. That's because the Trans-Harbour Link has destroyed their habitat. There is so much of silt. The mudflats are covered with filth. The mangroves the food is not available for the flamingos. So who's going to repair it? Are you going to demolish the bridge? Are you going to create a mudflat somewhere? No idea. Next. So what is happening today? It's all I would say the biggest or the saddest part is that the courts have given up on us. The courts have literally stopped speaking up for the environment. Very, very few. There is an example of a recalling of a final judgment of the Honorable Supreme Court in the Vanashakti matter. It is being fought again all over now. Now final judgments are also being recalled. For what? For whom? You ask yourselves. Now today I am telling you, we are going to lose 2,000 trees for a metro from Vadala to Kolaba. Another 600 trees are going to be slaughtered for a film institute inside the RA boundaries. These are all urgent projects, mind you. This cannot be situated anywhere else. It has to be inside a forest at the cost of the trees. Next. So here, we found that always the PILs for environment always go before a select bench in the High Court, in the Supreme Court. No other judge can hear it. Are the other judges incompetent? Why isn't a judge given a fair chance? Why isn't the petitioners given a good chance? Matters languish for years. But why is this system coming that you cannot take a PIL to someone else? Here, there's a lot of remarks which come from the judiciary which say that, for example, they said, reclamation is good, it is easy, fast and easy. In times of climate change, if the court says reclamation is good, we are in dangerous hands. Secondly, they said that you can build a factory on mangroves if there is no space left for rice processing. These are the remarks which are coming. So where do you go now? There is an important thing which I learnt and I heard from a judge in the National Green Tribunal, Justice Javed Rahim. This, all of you must pay attention. He said that in matters of environment, the environment is the petitioner in absentia.
It is not we. The environment is the petitioner before the court. Who is seeking justice? Vanashakti is not seeking it. It's not Mr. Rajendra Singh. It is the environment which is asking justice. So this should be understood by the judiciary also. Next. So this is whatever compromises the intergenerational equity cannot be called as sustainable development. What you are destroying today, if it belongs to the next generation, you cannot touch it. Next. Remember Darrell always, because he was always concerned and vocal for the environment. He wrote fearlessly and truthfully. How many write today? That's the question. I read Ms. Smriti's article also. It was very nice. Thank you for that. We should follow in his footsteps and try and protect whatever we can of Mumbai's natural heritage. That would be properly remembering Darrell, I would say. We should speak up more. Our voices are getting muffled day by day. The silence is becoming louder. Next. So these are sustainable goals. This is shown at every seminar, every function. Look at this very carefully. This is the United Nations approved area. Where are we lacking? See the circled area, number 16. We lack peace, justice, and strong institutions. This is what we should be working for. We need peace, we need justice, and we need strong institutions. And that will happen only when people demand it. A select 5, 10, 15, 100 people won't do. We need 50,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore people to talk about it. At least 1% of the population should be talking about it. Then things will change. Next. So I would say Mumbai needs you. Speak up, speak out, show up, stand up, speak up, I would say. And next. Reaching here is not sustainable development. So we are come into a symbolic state today. So this is the long and short of it. Thank you. I finished in 14 minutes and 27 seconds. Thank you. Thank you so much. As an editor, I would approve. You heard Stalin, one of the veteran fighters in this city. I want you to hear for 5 minutes a very young person, a financial analyst by training, who's taken up the mangroves fight like it's a fight for her life. Bansari Kothari. She's been interacting with the BMC, going over the documents, and she'll tell you what is missing in the documents, in the EIA and all of that, as much as she can. And she is also under an extreme deadline, more extreme than yours, Stalin. 5 minutes, Bansari, before we listen to Rajendra ji. Please come. Thank you, Smriti, and thank you, everyone. I hope I'm audible. Okay. Dear fellow nature lovers, good evening. And first of all, it's a big privilege for me to be standing here in the presence and memory of such legendary figures. I am told that I represent the Gen Z, so I'm trying, to uphold their name. My name is Bansari Kothari, and I represent the wonderful team of Save Mumbai Mangroves. This is kind of the formal name that our movement has taken. And our movement seems to be quite successful. People laud it because we've reached 20,000 people. We have celebrities roped in. We have the media speaking. There are headlines. But I think we're just barely scratching the surface. Most of us know, and thanks to Stalin sir very much in detail, about the massacre that has started in Mumbai. Mangroves, RA forest, not just the mangroves, the amount of terrestrial trees that are going in our city. The heat is increasing every year. Sea levels are rising. It's absolutely an ecological suicide that is happening, and that too for projects which don't make economic or financial sense at all. For example, the Coastal Road project, just the Versova to Bhayandar stretch, costs 33,000 crores.
Imagine that much of money if spent on BST bus networks, on metro networks. And that too, the road is going to be used by a maximum of 5% of the population of Mumbai, because the others can't even afford to ride on those roads. And spending crores of rupees on the coastal road for playing the Jai Ho song, and it just doesn't make sense at all. And at the cost of what? The ecological health and our well-being of the Mumbaikars. I want to talk more about how we plan to go ahead. As I said, I am not very happy as to how things are going. We are talking to people and we are only able to reach the people who already agree with us. We are confined to dead ends, we are confined to closed spaces, we are not heard in the larger public. The matter of the environment is not discussed at the chai wala or the tapri wala. These are not dinner table conversations, whereas these should be, because it's a matter of our own survival. So, we recently had a BMC hearing at the K West Ward office for Nana Nani Park, which is also part of the Coastal Road project. Why I want to speak about it is because I think that's a good case study as to how a lot of people came together to have a very good outcome. We had lawyers, we had architects, we had engineers, we had citizens who had come together and said, A, what you're doing is illegal. B, we have solutions for you as well. We suggested to them that, if you stretch the road 2 kilometers ahead and take it from this route, you can save these many trees. We had citizens who had objected to this, that, you cannot spoil our neighborhood. So what I'm trying to say here is, and how I am trying to distill my learnings from the minimal experience I have, is that we need to follow largely a 4-pointer plan. First is to unite. We need experts, we need citizens, we need people from all walks of life to join here. Why is it that the SGNP movement does not talk about mangroves, or the people in Worli don't talk about Thane or Uttan or Palghar? Why is there so much of fragmentation? We need everybody to unite, all experts, all experienced people to unite, share their learnings, so that we have a united front against the multifaceted attack that is happening on us. The second is disclose. The root of the matter is that we are not able to get the notices, the compliance reports, the clearances, all the requisite documents on time, which is why we are not able to analyze, which is why we are not able to object. Hence, the good part is that we are living in an age of technology where we can leverage IoT, big data, Gen AI, controversial, sorry, but Gen AI for good, and create dashboards and preemptive systems which help us to gather information from beforehand, analyze stuff from beforehand, and object when the projects are at very preliminary stages and not at the end moment where courts will say, oh, sorry, we can't help it. So we need to be preemptive and we need to be proactive rather than being reactive. The third is to popularize. We are in the age of social media. If press doesn't support us, we have social media, we have people, we have citizen journalists who have the outlet of social media, and we need to make this viral. We need to make it a part of our pop culture. We need to make caring cool. And the fourth is restore. So what? Things are getting destroyed. We need to also work towards restoring, how much ever we can. So to conclude, in times where environmental clearances are reduced to mere checklists and templates, nature is viewed as impediments or constraints, and the scientific rigor is absolutely removed from the process of environmental justice.
we need to come together, we need to unite, and we need to really, really speak up and stand up for ourselves. Because if not now, then I think it'll be too late for us. Mumbai will be absolutely unrecognizable and unlivable. And this is it's a very sad message, but you know, we really need to take a step forward towards a better future, and we really need to be united and stand up for ourselves. Yeah. Thank you. I hope it makes sense. Thank you. Can I have Bittu escort Rajendra ji back to the dais? Sandeep ji. And I invite Bittu now to introduce Dr. Rajendra Singh ji to the audience. So as many of you will know that I don't know how to introduce anybody in a formal way. So I will just tell you this, that a long, long time ago when Darrell was running the environmental movement virtually as a journalist, he found that there was this big gap between human rights and the environment. And Sham Chanani, I miss you as well, Darrell somewhere up there. The fact of the matter is that these two guys, they sort of brought a sense of reality into us then. So if we are sitting over here, please believe me, somewhere or the other, the spirit of both of these guys is with us. I'm supposed to introduce my dear friend Rajendra, and I have to do so in context with Darrell and Sham. This is not an environmentalist, this is not a social activist. This is, I would say, a magician, you know. Because at a time when there were daggers drawn, he was the guy who brought people together. I don't want to introduce him formally. I want to tell you a few things that he will not talk about, perhaps about himself and what he managed to do. Everybody, I miss Valmik Thapar as well, but Valmik Thapar was sitting on one side of this thing and somebody was sitting on the other side of things, and Sariska was the place which is his forest, I would say. And at that point, very quietly, before anything was done, he built something like 600 small water structures inside Sariska. Nobody ever used to go to Sariska. Ranthambore was the thing, you know. And having built those, the water came, and his structures are this big and that small. Now, they almost threatened to arrest him. Now, who gave you the permission to go inside Sariska? And here, with Valmik, I brought Valmik to his ashram, and we sat down over there, and we sat on the thali, and Valmik sat on a small khatia and slept overnight. And magic happened. And Valmik said, those of you who know Valmik, he doesn't say things as Valmik said, you know how it is, you know, you have to find a way to build a bridge. So we found a bridge. He is the bridge. You, राजेंद्र, जो आपने काम किया था, मुझे याद है वो, क्योंकि लोग झगड़ते ज़्यादा थे, बात बहुत करते थे, दिल से बात करते थे, लेकिन उसका असर यही था कि हम और भी दूर होते जाए. आप, he is the cement, like the two tubes of araldite. Forget the chemical aspect of that, but the two tubes of araldite, he made those things come together. And today, what you will hear from him, apart from all else, is something that was reflected by a young boy that we had, Yuvan Aves. We gave him a small award. And this young boy in his teens, you know, he said that you can measure climate in carbon, but his mother tongue is water. And the teacher of the mother tongue is sitting here before you. Most of it, what he'll speak will be Hindi. But I'll tell you this, that I checked beforehand. Even those who don't understand it as well as he would speak, I am requesting the Patrakar Sangh and I'm requesting the press club, please take portions of that at least. And Mr. Google promised that he can just take a reel and he can turn it into any language with lip syncing and all that. So let's use some technology later on and take this to 1 million people. You'll hear a very good man right now. He is somebody that's being consulted by half a dozen countries across the world to do what he has done already. And I started and mentioned Sariska. All the tigers in Sariska had been wiped out. All of them had been wiped out, and then we got Panna as well, all got wiped out. And when they came back in Sariska, everybody sort of said, all the wildlife guys, great, you brought the tigers back.
A few of us knew why the tigers were back, because Sariska was actually dry. It was dry. Even the normal water courses had dried up. Those 600 small structures brought the water back. The water comes back, the grass comes back, the grass comes back, the deer comes back, the deer come back, the tiger comes back. And that's not just deer and tiger. What he's doing is he is actually at the pivot, at the tri-junction of biodiversity, economics and climate change, with climate change being the spoiler for both. So he is sitting there at that, advising people across the world as to how they can bring in. He'll talk about all that later. But I will tell you this, you're about to hear a remarkable man, and if you don't understand much of what he speaks, because he speaks like Rajendra Singh speaks, but you will be able to make. Rajendra, a man who's called the waterman of India, but I would call him the man who brings life back. मैं सबसे पहले तो डैरियल डिमोंटो की फैमिली और उनके दोस्त, उनको जानने वाले, उनको आदर करने वाले, उन सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। और ये सैल्यूट मैं ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ। जब मुझे कोई नहीं जानता था और डैरियल डिमोंटो बहुत बिजी जर्नलिस्ट था, उस ज़माने में उसने 97 में, जब मुझे मेरे काम को इस देश में जानने वाले लोग नहीं थे, तब 4 दिन वहाँ रहकर उसने हमारे काम के बारे में लिखा था। मैं उनके उन शब्दों को जो उन्होंने लिखा था उनको याद करते हुए बस इतना कहता हूँ कि डैरियल डिमोंटो सचमुच एक अच्छे पत्रकार थे, लेकिन उनकी पत्रकारिता में प्रकृति और मानवता दोनों का बराबर सम्मान था। और उन्होंने जब हमारी अरवरी नदी पेरिनियल हुई तो उनको लगता नहीं था कि यार राजस्थान में नदी कैसे पेरिनियल होगी, हमारी सब नदियां तो मर रही हैं, सूख रही हैं, ये सब कोई झूठी कहानी है। तो झूठी कहानी को देखने के लिए वो हमारे राजस्थान आए थे कि नदी कैसे जिंदा हो सकती है, और राजस्थान में बारिश कम होती है तो बारिश कम में नदी कैसे जिंदा होगी। ये उनके लिए सवाल था, और इस सवाल को वो किसी भी जूनियर जर्नलिस्ट को भेज के इसकी सच्चाई जान सकते थे, पर वो खुद गए। इससे लगता है कि जब किसी पत्रकार के मन में सच्चाई प्रेम से खोजने का भाव होता है, तब वो कुछ कुछ अलग इंसान होता है। तो डैरियल डिमोंटो मेरे लिए एक अलग ऐसे पत्रकार थे जिनके मन में प्रकृति और मानवता दोनों के प्रति बराबर सम्मान था। मित्रों, मैंने वन शक्ति के साथी को सुना और अपनी एक युवा कोठारी बहन को सुना। अभी वो ज़माना नहीं है इस देश में जो 70s में था, 1970s में था, वर्ष 2000 में था और वर्ष 2014 तक था। 2014 से पहले यदि भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो सरकार के लिए एक कानूनी दायित्व बन जाता था। अरावली के मामले में वही हुआ। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली हमारे देश के लिए केवल एक पहाड़ नहीं है, वो हमारी पर्यावरण को, हमारे बादलों को, हमारी जलवायु को सुधारने का, संतुलित करने का काम करता है। और यदि दिल्ली को अपनी कैपिटल यहां बचा के रखनी है इस सरकार को, तो अरावली को बचाना जरूरी है।
आपको पता है इस छोटे से ऑर्डर ने भारत सरकार को मजबूर किया एक 7 मई 1992 को अरावली प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन करने के लिए। छोटी सी जजमेंट थी, लेकिन उस जजमेंट को भारत के पर्यावरण को, भारत के जीवन को और भारत की परिस्थिति को बचाने के लिए सरकार ने अपने दायित्व को समझकर 7 मई 1992 को जो नोटिफिकेशन किया, उसके बाद 28,000 खदानें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में हमने बंद कराई। और ये माइंस लीगल और इलीगल दोनों थी। तो जो लीगल माइंस थी वो तो जजमेंट से आने के 10-15 दिन में, 1 महीने में बंद हो गई थी, लेकिन जो इलीगल माइनिंग थी वो बंद नहीं हुई थी। तो हमने 2 अक्टूबर 1993 को हिम्मतनगर गुजरात से यात्रा शुरू करके, कितने लोग थे? 500 से थोड़े ज्यादा, मौके पर जाकर खदानें बंद कराई। खदानें बंद होने के कारण 12.5 लाख लोग बेरोजगार हुए, अनएम्प्लॉयड हुए। तो जिस तरह से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी आर्टिकल 48A में, उसी तरह से मैंने भी अपनी जिम्मेदारी आर्टिकल 51A और G में ये समझा था कि ये हमारा दायित्व है कि इन लोगों के जीवन के लिए पानी और पर्यावरण सुधारने का काम हम करेंगे। उस जमाने में हमने हजारों बेरोजगार युवाओं को पानी, पर्यावरण और प्रकृति के रक्षण, संरक्षण का प्रशिक्षण देकर तैयार किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर हमारे खिलाफ जो पूरे माइनिंग लॉबी, माइनिंग माफिया, माइनिंग के डकैत, डाकू जो वातावरण बना रहे थे कि ये विकास विरोधी लोग हैं, वो चुप हो गए। क्योंकि हमने बादलों से आई बूंदों को पकड़ के धरती के पेट में रखना सिखाया था। और धरती के पेट से सूरज पानी की चोरी नहीं कर सकता। ये आपकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकती। ये तो कम्युनिटी की जो साइंस है वो ही सिखा सकती है। दोस्तों, उस जमाने के लोग, बूढ़े लोग एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो अब मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये घर घर में दुख भरे गीत उस जमाने में गाए जाते थे। और मैं तो आयुर्वेद का बना हुआ इंसान था। मैं, जो बूढ़े लोग थे, रतौंधी रोग से ग्रसित थे, मैं उनका इलाज कर रहा था। तब एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमें तेरी दवाई भी नहीं चाहिए और तेरी पढ़ाई भी नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, पानी। हम पानी के कारण उजड़े हैं, और तुझे मेरे गांव में रहना है ना, तो पानी का काम कर, नहीं तो गांव छोड़ के भाग जा। तो मैंने कहा, काका, तब मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। 4 साल भारत सरकार के साथ काम करके जयपुर शहर छोड़ के मैं उस इलाके में गया था जो उजड़ा था, वीरान था, जो विकास के नाम पर जिसका विस्थापन हुआ था, जिसमें बिगाड़ हुआ था, जिसमें विनाश हुआ था, वो इलाका मैंने अपने काम के लिए चुना था।
अलवर जिले की थानागाजी तहसील और उसके गांव। बूढ़े आदमी ने कहा, दवाई और पढ़ाई बंद कर, पानी का काम कर। तो मैंने कहा, काका मेरी उम्र 26 साल हो गई, अब ये पानी की डॉक्टरी कितने दिन में सीखूंगा? आदमी की डॉक्टरी सीखने में 5 साल लगे। अब बोला 2 दिन लागेला, 2 दिन में सिखा दूला। तो दोस्तों, मेरे अनपढ़ गुरु ने, मैं बाद में मैंने उनको गुरु मान लिया, उसने मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट की। मैं इस हाउस को ये बता देना चाहता हूं कि एक दिन में एक पीएचडी कैसे कंप्लीट हो सकती है। उस आदमी ने मुझे चमड़े के चरस में बैठा के, जिसमें पुराने जमाने में पानी निकाला जाता था, उस चमड़े के चरस में बैठा के जो सूखे कुएं थे उन कुओं में नीचे पटक दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे तने कुएं में कहीं देखा रे राजिंदर? मैंने कहा, काका ई कुएं में तो सीधी सड़क है। तो बोला, आठे पेड़ देख कहीं छे, यहाँ की घास देख कहीं छे। तो धरती का पेट, नीचे का पेट, धरती के ऊपर की घास, ऊपर के पेड़ पौधे, ऊपर के पेड़ों की पत्तियां, उनसे देखना सिखा दिया। तो धरती के अंदर की जो जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी थी उसको डायग्नोज करने का काम 25 कुएं दिखा के कंप्लीट किया। तो मेरी पीएचडी, जो पहली पीएचडी थी एक दिन की, उसका वैलिडेशन 3 प्रोफेसरों ने नहीं किया, मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुओं ने किया। और 25 कुओं के बारे में जो उसने सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब जब पूरा ठीक से आ गया, तब उसने कहा, हाँ अब तू धरती का पेट सीख गयो, अब तेरा काम है कि सूरज पानी की चोरी को कर सके, अइया की जगह डैम बना जो। तो दोस्तों, जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, हमने उसको ढूंढकर उसके ऊपर बांध बनाए, तो बारिश में जो पानी आया वो धरती के पेट में नीचे चला गया। वहां से एवोपरेशन लॉस नहीं हो सकता। तुम ना बंबई के लोग भगवान के बहुत लाडले बेटे हो और बहुत लाडली बेटियां हो, क्योंकि तुम्हारे पास अथाह जल है और अथाह वर्षा होती है। राजस्थान के लोग भगवान के गुस्से से, इतना गुस्सा है राजस्थान के ऊपर कि बादल दिखता है पर पानी नहीं बरसता था। आपके यहां तो बादल आता है तो पानी लेके आता है, और फिर इतना बड़ा समुद्र है, और आपके समुद्र से ही बादल वेस्टर्न घाट में होते हुए, ईस्टर्न घाट में होते हुए, सतपुड़ा के जंगलों में, विंध्याचल के जंगलों में होते हुए हमारे राजस्थान तक पहुंचते थे। और राजस्थान जाते जाते ये सारे बादल खाली हो जाते थे। इन बादलों को निचोड़ने का काम हमारा अरावली पर्वत करता था, क्योंकि अरावली पर्वत उत्तर से पश्चिम की तरफ है, भारत के सारे पहाड़ उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन एकमात्र पर्वत है भारत में जो उत्तर से पश्चिम की तरफ है। इसलिए राजस्थान के लोग उसको अरावल कहते हैं, राजस्थान के लोग उसको अरा पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत ही है जिसके कारण खाली हुए बादल, उनमें जो कुछ थोड़ा पानी बचा है वो वहां राजस्थान की जमीन पर निचोड़ देता है। ये है अरावली का गुण। इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने जब हमें ये कहा कि जब तक ये खदानें चलेंगी तब तक हमारे कुएं में पानी नहीं होगा, तो मैं सबसे पहले 1988 में सुप्रीम कोर्ट गया और 10 अक्टूबर 91 को पहला जजमेंट मिला अरावली के हित में कि अरावली को बचाना अब जरूरी है, इसलिए ये जितनी खदानें हैं इन सबको बंद करो। तो सबसे पहले ऑर्डर में हमारी केवल सरिस्का की 478 माइंस बंद हुई। और जब आप एक जगह जीत जाते हैं तो फिर आपका लड़ाई का दायरा बढ़ जाता है। फिर हमने कहा भाई अब हम सरिस्का में जीत गए
तो अब पूरी अरावली में ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए और पूरी अरावली को बचाना है। हमारा केस पूरी अरावली के लिए शुरू हुआ और पहले दौर में 1992 के शुरुआत में अलवर और गुड़गांव 2 जिलों की खदानें बंद की गई और फिर हमने पूरी अरावली का दोबारा से लड़ाई शुरू की। तो 7 मई 1992 को अरावली के लिए, अरावली में अब खनन नहीं होगा, इसकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सब सुप्रीम कोर्ट ने बुला के एनवायरमेंट मिनिस्टर को कहा और एनवायरमेंट मिनिस्टर ने 7 मई 1992 को अरावली प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों, अब तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है उसको सरकार कचरे के टोकरी में डाल देती है। तो अब आप सारे आंदोलनकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल की लड़ाई में हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये लड़ाई हमारे काम की नहीं है। हम यदि जीत भी गए, कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर भी दे दिया, तो भी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि इस वक्त सरकार ने ये मान लिया है कि ये जो कोर्ट है ये तो हमारा पार्ट है, सर्वोपरि तो हम हैं। एक जमाना था जब कोर्ट सुप्रीम होती थी, सुप्रीम नाम ही उसका सुप्रीम कोर्ट था। अब वो नहीं है उसका नाम, अब वो सरकार का एक अंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि अब हम सुप्रीम नहीं हैं, अब तो सरकार सुप्रीमो है। इसलिए इस सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो थोड़े बहुत लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब बैठकर सुप्रीम कोर्ट से एक समिति बनवा लेते हैं और वो जो समिति है वो फिर एक रिपोर्ट जैसी सरकार को चाहिए वैसी रिपोर्ट बना के वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते हैं और उस रिपोर्ट की लाइट में जजमेंट हो जाती है। अरावली में क्या हुआ? अरावली में यही हुआ। वर्ष 2024 से पहले जितने भी जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट से वो सब अरावली को प्रोटेक्ट करने वाले जजमेंट थे। 20 नवंबर 2025 को जो जजमेंट आई, जो काम ब्यूरोक्रेट करते हैं, जो काम टेक्नोक्रेट करते हैं, वो काम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कर रहा है। मतलब ब्यूरोक्रेट का काम, एक्सपर्ट्स का काम कौन कर रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला चीफ जस्टिस कर रहा है। वो एकदम से एक रात के अंदर अरावली की डेफिनेशन बदल देता है और कहता है कि 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ी है वो ही अरावली है। लेकिन अरावली के लोग भी भूखे मर के स्वराज्य के लिए लड़ना जानते हैं। अरावली के लोगों ने संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट को सिखा दिया, दिखा दिया कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, हम तुम्हारा अपमान करेंगे। अरावली के लोगों ने जिस तरह से संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाया कि तुमने जो अपनी औकात दिखा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, अब हम तुम्हारा अपमान किए बिना नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ जब चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेकर उसको स्टे किया। ऐसा अपमान कभी पहले नहीं हुआ हमारे सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और यह अपमान इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आर्टिकल 48A के खिलाफ, आर्टिकल 21 के खिलाफ ये जजमेंट दी थी। इसलिए अरावली के लोगों ने
संगठित होकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये पाठ सिखाया, और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ मिलकर इस पूरे आंदोलन की हवा निकालने के लिए विदिन 3 days 3 दिन में सारी हवा बदल के उसने कहा हम स्टे दे देते हैं, इसको रद्द कर दें, इस पर पुनर्विचार करते हैं। और पुनर्विचार में क्या किया? पुनर्विचार में फिर उसी तरह के एक्सपर्ट और उसी तरह के ब्यूरोक्रेट जिनकी पुरानी रिपोर्ट थी, उसी तरह के लोगों की कमेटी बनाने की तैयारी की। दोस्तों, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं है, अब हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं है। अब हमारी जो लड़ाई है वो लोगों के बलबूते पर है। अरावली के लोग संगठित होकर यदि सुप्रीम कोर्ट ने फिर वैसा ही किया तो अरावली के लोग अब करने नहीं देंगे, क्योंकि अरावली के लोगों का गुण ये है कि वो घास की रोटी खाकर भी स्वराज्य बचाने के लिए लड़े थे। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं था जब वो आखिर में लड़ रहे थे। हल्दी घाटी में घास की रोटियां खाकर भी स्वराज्य के लिए लड़े और जीते थे। इसलिए अरावली के लोगों में वो दमखम है। इसलिए हम आज आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अब सरकारों का पहाड़ और नदी से कोई रिश्ता रहा नहीं है। ना वो पहाड़ बचाना चाहते हैं, ना नदी बचाना चाहते हैं। पर इस देश के लोगों को पहाड़ और नदी के प्राणों का पता है, इसलिए इस देश के लोग खड़े होंगे और पहाड़ों और नदियों के रिश्ते को जागृत करेंगे। मित्रों, मैंने ना पहाड़ पढ़ा था ना नदी पढ़ी थी। मैंने पिछले अपने 50 साल के जीवन में एक छोटे से गांव गोपालपुरा से पानी का काम शुरू किया, और उस पानी के काम ने हमारे समाज की जो रिश्तेदारियों का जाल था, उस रिश्तेदारियों के जाल से ये काम पूरे बड़े इलाके में फैल गया। और सबसे पहली नदी जिसको डेरियल डी मंटो देखने गए थे उसका नाम था अरवरी नदी। हमारी अरवरी नदी 1995 में पेरिनियल हुई और वो 1997 में आए थे, 1997 में। और तब से लेकर फिर बहुत लोगों ने, वीक ने, सब ने उस नदी पर लिखना शुरू किया। दोस्तों, ये जो लड़ाई का काम है, इस लड़ाई के काम में सब लोग साथ नहीं आते हैं और सबको साथ लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब लोग समझ लेते हैं, जब लोगों को एहसास हो जाता है, तब साथ आते हैं। जैसे चंबल में सब चारों तरफ बंदूकों से लूटपाट का काम करने वाले डाकू थे। अब हम चाहते कि भाई पहले हम डाकुओं को ही पहले मनाएं कि वो बंदूक छोड़े। तो आज मैं आपके सामने खड़ा होके ये नहीं कह सकता था कि हमने 6332 डाकुओं की बंदूकें छुड़ा के उनको किसान बना दिया। पर किसने बनाया? वो राजेंद्र सिंह ने नहीं बनाया, वो उन डाकुओं की पत्नियों ने बनाया। हमने उन डाकुओं की पत्नी के साथ काम किया और उनकी खेती, उनकी जमीन और उनकी लाइफ को पानीदार बनाया। और फिर उन्होंने अपने पतियों के साथ बात करना शुरू किया कि तू मुझे यहां अकेली रखने के लिए ही लाया था कि तू जंगल में रहेगा और मैं यहां रहूंगी, तू इसीलिए लेके आया था। वो बेचारे कहते हैं कि तुझे पता है मेरे ऊपर कितने केस हैं? उन्होंने कहा केस वेस निपट जाएंगे, पर तू पक्का तो कर तू कि मेरे साथ रहेगा। अब से तू जिस दिन ये कर लेगा पक्का कि तू मेरे साथ रहेगा, उस दिन से तेरे केस भी निपटने का रास्ता आ जाएगा। अब खेत में पानी हो गया ना, खेती होती है ना, तो वो भी रास्ता मिल जाएगा। ये जो महिलाएं होती हैं, भारत की महिलाएं खासकर, ये गहरी, गंभीर और ये जो आर्टिफिशियल एक्सीलेंस है ना, ये उसके चक्कर में थोड़ी कम पड़ती है। इनकी जो इमोशनल एक्सीलेंस है, भारत की महिलाओं की जो
इमोशनल एक्सीलेंस है, वो सचमुच बहुत गहरी है, समझ है उसमें, और वो हम सब के पोषण के लिए चिंतित रहती हैं। बच्चों का पोषण, पुरुषों का पोषण, सबका पोषण करने का उनका अपना एक ज्ञान है, अपनी एक समझ है। इन महिलाओं ने ये जो सारी बंदूकें छुड़ाने का काम किया, मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये राजेंद्र सिंह का काम नहीं है। राजेंद्र सिंह तो वो जो महिलाएं थी, जो बेचारी अकेली थी, तनाव में थी, दुखी थी, केवल उनके खेतों पर पानी का काम करवा सका और उनके लिए बांध, जोहड़, तालाब, गली प्लगिंग, नाला बंडिंग, ये सब काम करा के उनकी जिंदगी को ठीक करा सका। यहाँ एक सुमंत पांडे बैठा है पीछे, ये वहाँ, ये वैसे तो यशदा का प्रोफेसर था, लेकिन एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार के साथ ये 10-12 दिन डाकुओं के घर में रह के आया। तो ये बता सकता है कि महिलाओं की जिंदगी में पानी आने से कैसे रौनक आती है, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ की जो ड्रेजरी है वो कैसे खत्म होकर उनकी जिंदगी को आनंद में बनाती है। तो पानी का काम जब इस नेचर में जब काम का बंटवारा हो रहा था, तो महिलाओं ने पानी का काम अपने हक में लिया। अब इसके कारण उन्होंने कष्ट भी सबसे ज्यादा भोगा, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर से पानी लाने का काम वही करती है। पर पानी जो है ना, वो प्राण है, उसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। तो वो महिला जानती थी, जब भी काम का बंटवारा हुआ होगा तो उसने बहुत होशियारी से पानी अपने हक में लिखवा लिया कि देखो, पानी तो मैं ही पिलाऊंगी तुझे, तू बुढ़ा होके मर या जवान होके मर, मेरे बिना तो नहीं। तो उसने बिल्कुल मजबूती का काम अपने हाथ में लिया। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है इस देश को बचाने का। इस वक्त मैंग्रोव, हिमालय के अंदर ऑल वेदर रोड, टूरिज्म, डैम्स, ये सब हमारी लाइफ के लिए चुनौतियां हैं। और ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का समाधान अब ना तो भारत की कोर्ट दे सकती और ना भारत की सरकार दे सकती। अब इनके पास इसके सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी जो है ना, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब व्यक्ति की प्रायोरिटी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, तब इकोलॉजी उसका हिस्सा नहीं रहती, तब उसके जीवन का हिस्सा इकोलॉजी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वो जो इकोलॉजी के साथ डिस्कनेक्टिविटी है इस वक्त की सरकार की, उसके परिणाम ये हैं कि अब हम लोग लाचार, बेकार, बीमार हुए दिखते हैं। इसको यदि हमें ठीक करना है तो एक बार फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सीड ऑफ होप। अभी भारत का जो संविधान है वो एक आशा की किरण बनता है, और उस आशा की किरण में हमें अब सरकारों को कहना पड़ेगा कि भाई, तुम्हारी जो कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उस कमिटमेंट को पूरा करो। और वो हमारे कहने से नहीं करेंगे, हमारे कहने से नहीं करेंगे तो क्या तरीका है कि उनसे करवाना है। इस देश के अंदर ये जो इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक लिटरेसी है, इसके लिए हमें अब एक पूरी इंटीग्रेटेड मूवमेंट की जरूरत है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई लड़ने से इस देश की व्यवस्था पर, इस देश के सिस्टम पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो सिस्टम है इस वक्त, ये सचमुच संवेदनहीन है, और जब सिस्टम संवेदनहीन होता है तब ये क्राइसिस होती है। ये जो सरकार है, ये अपने को कल्चरल रिलीजियस सरकार कहती है, लेकिन इस सरकार ने इस देश की कल्चर को कभी समझने की कोशिश नहीं की। इस देश में हम पंच महाभूतों को अपना भगवान मानते हैं। भय से भूमि, गय से गगन
वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये जो 5 एलिमेंट हैं, वैदिक काल तक भारत के लोग इसी को भगवान मानते थे और इसी की पूजा करते थे। कोई मंदिर नहीं था। अब ये सरकार मंदिर बनाने में लगी है। तो जब तुम सीमेंट कंक्रीट का मंदिर बनाते हो तो जो आदमी के अंदर का मंदिर है वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो मंदिर है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर का मंदिर को नष्ट करने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इस कॉन्स्पिरेसी को यदि ठीक से समझकर हम भारत को फिर से दुनिया को सिखाने वाला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपना ओरिजिनल नॉलेज सिस्टम, जिसको हम भारत के लोग इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से कुछ लर्निंग की प्रोसेस हमें करनी चाहिए। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में हम भारत के लोग इस पूरी नेचर को, आपहा ब्रह्मास्मि, आपा माने जल, जल जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे प्लेनेट को बनाने की बिगनिंग का एलिमेंट है। और इस बात को भारतीय लोग जानते थे कि 3.5 खरब साल पहले, जब तक टाइम का भी और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स भी नहीं आए थे, तब तक ये जो पूरा प्लेनेट था एक आग के गोले की तरह था और एक महाविस्फोट हुआ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट अलग अलग हो गए। और फिर बाद में पता चला फिजिक्स के सिद्धांत में कि ये कोई एलिमेंट है, और ये दोनों एलिमेंट जैसे ही मिले तो पानी बन गया। और फिर धीरे धीरे इस पानी ने हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को, हमारी हवा को, सबको बना दिया। और जैसे जैसे ये हमारी समझ में आने लगा कि हम इसके एक हिस्से हैं, हम इसके कंट्रोलर नहीं हैं, हम इसके एक मामूली हिस्से हैं, इसलिए इसके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा का बोध हुआ। और उस श्रद्धा बोध ने पानी के बारे में कहना शुरू किया, आपहा ब्रह्मास्मि, मतलब ये जो जल है यही हमारे लिए सब कुछ है, इसी से हमारा जीवन बनता और चलता है। और उस काल में भारत के लोगों में एक बहुत बड़ी मान्यता थी, नीर, नारी और नदी। नीर माने लाइफ एंड नारी माने क्रिएटर। वुमेन, अर्थ, नेचर, दे आर द रियल क्रिएटर। एंड नदी, नदी जो है वो हमारी सिविलाइजेशंस का, दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है उनको जन्म देने वाली नदी है। इसलिए हम नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। ये जो श्रद्धा थी, ये जो सम्मान था नीर के प्रति, नारी के प्रति और नदी के प्रति, वो सम्मान आज नहीं है। आज ये सब चीजें सम्मान के लायक नहीं बची हैं। तो जब आप खुद प्रकृति को सम्मान नहीं करते तो फिर आप दुनिया को सिखाने वाले विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे भाई? ये फॉल्स जो है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, ये सवा सत्य झूठ है। हम विश्व गुरु नहीं हैं, हम नकलची हैं। भाई किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पर सचमुच हम नकलची हैं, हम विश्व गुरु नहीं हैं। हम विश्व गुरु तब होते जब जिस नेचर ने हमें बनाया है उस नेचर के प्रति हमारे मन में सम्मान होता और उसको बचाए रखने के लिए काम करते। दोस्तों, ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं, ये बातें मैं आज आपके लिए भाषण देने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 51 सालों में 51 ईयर में जिया है, किया है। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने जो भी कुछ किया अपने जीवन में केवल पानी का काम करके, प्रकृति का काम करके, जंगल, जमीन और जल को, जल, जंगल, जमीन को बचाने का काम किया। जल मेरे लिए जीवन है, जंगल मेरे लिए प्राणवायु है, जमीन मेरे लिए मेरा अंजल है। तो जल, जंगल, जमीन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता।
तो जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं उसके लिए काम क्यों ना करूं? जो मुझे जीवन देती है, जो मेरे जीवन को बनाती है, मैं उसी के लिए काम करूंगा। तो दोस्तों, जो मेरे बारे में बिट्टू कह रहे थे, वो कई बार ऐसा होता है कि आप करते कुछ हैं और आपकी तस्वीर कुछ और बन जाती है। अब मेरी जो तस्वीर है वो पानी वाली है। कोई पानी वाला बाबा कहता है, कोई जोड़ वाला बाबा कहता है। लेकिन सचमुच जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं देखता हूं, यार मैंने जिंदगी में सबसे पहले तो ये अपने पहाड़ को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो मुझे कोई पहाड़ बचाने वाला क्यों नहीं कहता? मुझे कोई पहाड़ बचाने वाला वॉरियर कहने में किसको पेट में दर्द होता है? ये सब जो आईडी है हमारी, वो आईडी जिन लोगों के लिए जैसी सुविधाजनक होती है वैसी बनाते हैं। पर डैरियल डिमांटो ने जो लेख लिखा था उसमें ये सब चीजें लिखी थी कि ये आदमी पानी का काम करता है, लेकिन पानी के साथ साथ नदी जिंदा हो गई। और नदी जिंदा हो गई तो जो लोग उजड़ गए थे, जो डिस्प्लेस हो गए थे, वो दोबारा से वापस आ गए। रिवर्स माइग्रेशन हो गया। तो ये जो दृष्टि है, ये जो नजरिया है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है और उसकी जो अपनी विजन है, फ्यूचर की जो विजन है, उसके साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम यदि अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने का एक ही रास्ता है कि जरा पानी से थोड़ा प्यार करना शुरू करो। पानी से जैसे प्यार होगा ना तो फिर जंगल से, जंगली जानवर से, मिट्टी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार देखो, इसके बिना ना अंजल है और ना प्राण है। पर ये शुरुआत होगी पानी से ही। पानी अभी बंबई के लोगों को घर में मिल जाता है, इसलिए वो पानी का प्यार बंबई के लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन से आता है। बारिश का ही पानी है, जंगल का पानी इकट्ठा किया हुआ, लेकिन वो मशीन के जरिए आपके घरों में आता है। लेकिन जो लोग बिना मशीन के जंगल के पानी को पीते हैं, उनके मन में जल का अभी भी वही सम्मान है जो पहले था। तो जल का प्यार से सम्मान तक पहुंचना और उस सम्मान के बाद विश्वास तक पहुंचना, तब आपकी पानी को लूटने वाले, पानी को प्रदूषित करने वाले, पानी का व्यापार करने वाले, उनके साथ लड़ाई शुरू होती है, जैसे मेरी हुई। जब हमारी अरवरी नदी बहने लगी तो अरवरी पार्लियामेंट बनी और अरवरी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हमारी अरवरी नदी की जमीन, ये अरवरी नदी 72 गांव की है, अरवरी नदी की जमीन किसी पानी की कंपनी को नहीं बेचेंगे, बाहर की कंपनी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो पानी निकाल के पानी का व्यापार करेंगे। तो हमारे इलाके में 3 बड़ी कंपनियों ने जैसे ही पानी आया वो लीज ले ली सरकार से चुपके से। रिको एक हमारे यहाँ सरकारी विभाग, उससे ले ली। तो जब हमारी पार्लियामेंट को पता चला, नदी की पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है अरवरी रिवर पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट को पता चला तो सबसे पहले लोगों ने जाके जहां उनकी वो जमीन थी उस पर बड़े बड़े में लिखा कि ये पानी का काम हमने अपने लिए किया है, ये नदी को जिंदा करने का काम हमने अपने लिए किया है, तुम इसको पानी के यहां आकर व्यापार नहीं कर सकते। तो तीनों कंपनियों की जो लीज थी उनको रद्द कराने में 7 साल लड़े। जहां पानी आता है वहां पानी के लुटेरे साथ साथ आ जाते हैं, पानी के साथ ही आते हैं लुटेरे। तो एक तरफ पानी का प्यार का काम और दूसरी तरफ लड़ाई का काम
साथ साथ करना पड़ता है। दोस्तों, इस लड़ाई में दुश्मनी नहीं करनी, लड़ाई बिना दुश्मनी के करके जीती जाती है। लड़ाई को यदि दुश्मनी कर ली तो फिर ना तो आप जिंदा रहते हैं और ना जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो जिंदा रहता है। और हम दोनों को जिंदा रहना है, क्योंकि हम तो जीवन के रक्षक लोग हैं। तो यदि हम दोनों को जिंदा रहना है तो जरा समझाने का काम करना पड़ेगा, और समझाने से लोगों को समझ में आता नहीं है। तो फिर महिलाओं ने संगठित होकर जब उन्होंने वो पानी निकालने का किया, तो महिलाओं ने उन जो पाइप के जो बोर लगे थे उन सब में जाके पत्थर भर दिया। फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां पानी का हमारे इलाके में काम कर सके। इसलिए एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ संगठन और तीसरी तरफ सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। यदि ये तीनों काम होंगे तो हम अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने पूरे कर सकेंगे। हमें यदि अपना फ्यूचर ठीक करना है तो फिर हमें अपने मिलकर काम करने के साथ साथ संगठन और साथ में रचना, और वो रचना प्यार की रचना। प्यार की रचना से विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और उसी में से ट्रस्ट बिल्ट होता है। विश्वास, और विश्वास के बिना तो गाड़ी आगे नहीं जाती। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ सवाल पूछ सकें तो ये बातचीत और गहरी हो सकेगी। नहीं तो मैं अकेला बोलता रहूंगा 2 दिन तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो मैं आपको अब कुछ समय देता हूं कि मुझसे आप कुछ सवाल पूछ लें तो मैं आपके साथ थोड़ा संवाद कर सकूंगा। आपके मन में जो भी माझं नाव सुमंत पांडे। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जल साक्षरता, नदी साक्षरता के भी आपने पहले शुरू किए, यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं तो मैनग्रोव्स के बारे में वो साक्षरता हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर है। वनशक्ति वालों ने जो कहा है कि वो बिल्कुल सही है। और नदियाँ और खाड़ी, स्टोरेज क्रिक के बारे में जो 24-25 बड़ी बड़ी क्रिक्स है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, बद से बदतर है। तो उसको हम कैसे आगे करें? मैं ऐसा करूं, पहले सारे सवाल एक साथ ले लूं तो जवाब देना समय बच जाएगा। यस, उनको एक सवाल है। माझं नाव दीपक पवार है, 2 बजे दोपहर डेली पेपर है, उसके वहाँ से लिखता हूँ। सवाल ये है कि 10-12 साल पहले आप बम्बई में आए थे और मैंग्रोव्स के लिए अपने पूरा एक दौरा किया था, बीकेसी से लेकर भांडुप तक। सवाल ये है भी कि मेट्रो अभी आई है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बम्बई और रीजन में आए हैं, तो उसके ऊपर अभी पूरा बम्बई रीजन पूरा जो है, यहाँ की जो कितने आगरी कोली जो मच्छीमार जो है और खेती थी पूरे पहाड़ थे, वो सब खत्म हो गए अभी। तो इसके जैसे आप नदी को जिंदा करते हैं तो क्या ये पूरा समंदर है, क्रीक है और पहाड़ है, उसको फिर से जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, बम्बई जो है ना वो लक्ष्मी प्रिय है, ये महालक्ष्मी की नगरी है। और ये जो लक्ष्मी जी हैं वो बहुत चंचल हैं, वो सरस्वती से लड़ती रहती हैं। सरस्वती माने ज्ञान, और लक्ष्मी जी जो हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो ये जो लड़ाई है इस वक्त बम्बई की, वो लक्ष्मी और सरस्वती की है। अब इस सरस्वती और लक्ष्मी की इस लड़ाई में यदि हम सचमुच सावधानी से समझ के खड़ा होना चाहते हैं तो मैंग्रोव भी और यहाँ की जो 5 नदियाँ, ये बम्बई 5 नदियों का शहर है, इन 5 नदियों को रिजुनेट कर सकते हैं। हम लोग यदि सचमुच बम्बई को एक दोबारा से एक ऐसा शहर देखना चाहते हैं जहाँ प्रकृति और संस्कृति, इन दोनों की जो योगिक समृद्धि है और उससे इन दोनों के योग में जो हमारे डेवलपमेंट के डिज़ाइन बन सकते हैं,
वो डिजाइन में ना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपकी नॉलेज का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लोगों का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और उसमें डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, और उसमें डिजास्टर भी नहीं होगा। तो यदि आप बंबई में डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट का डिजाइन है वो यहाँ की कल्चर, यहाँ की नेचर, उसके बीच इंटीग्रेट करके डिजाइन बनाना पड़ेगा। और उस डिजाइन पर यदि हम काम करेंगे तो फिर हमें लगता है कि बंबई के लोगों के मन में ये बात आएगी कि यार ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है और इसको ठीक रखना है। यदि हमें ठीक रहना है तो फिर बंबई को ठीक रखना पड़ेगा। तो ये जो भाव है, ये भाव अभी लक्ष्मी जी के प्रभाव में खत्म हो गया है। अभी लक्ष्मी इतनी प्रभावी है बंबई में कि उसके अंदर का ये जो भाव है ना, वो मर गया है। तो यदि इस भाव को जागृत करना है तो फिर नेचर ही इसको रिजोनेट कर सकती है। तो हमारे मन में जिस दिन ये भाव आ जाए कि यार बंबई मेरा शहर है और यहाँ का मैंग्रोव, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का समुद्र, इसकी हेल्थ और मेरी हेल्थ का रिश्ता है। तो ये जो हेल्थ रिलेशनशिप है, इसको हम जिस दिन उजागर करना शुरू करेंगे, तब हमारी जो इस शहर के साथ जो हमारा आत्मिक रिश्ता है वो जागृत होगा, और फिर हम लोग थोड़ा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे। और जो हम अच्छा कर सकते हैं, जो क्रिएटिव कर सकते हैं, उस क्रिएटिव को करने का रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन होगा। उसको हिंदी में कहते हैं कि अच्छा करने का एहसास और आभास आपको होने लगेगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए इस वक्त यहाँ एक ऐसी मूवमेंट की ज़रूरत है जिसमें हम इस शहर के साथ अपने आप को जोड़ सकें। 2007 में पवई, IIT पवई से हमने, जहाँ ये मीठी नदी समुद्र में मिलती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ यात्रा की थी। और उस यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों के मन में मीठी को रिजोनेट करने का भाव आया था, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रही। कॉन्टिन्यूटी नहीं रही तो वो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ी, और वो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ी तो अब आपकी जो मैंग्रोव है बड़ी संख्या में और कटने लगा। यदि उसी वक्त वो कॉन्टिन्यूटी बन जाती तो जो आज हमारी बहन मैंग्रोव के लिए चिंतित है, उस स्टेज तक स्थिति ना आती। और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे इलाके में पूरी नदी में एक भी आज पानी को लूटने वाली और पॉल्यूट करने वाली कंपनी नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ ये लगने नहीं देंगे, ये चलने नहीं देंगे, और हमने लगा भी ली तो ये बंद करा देंगे। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने शहर के साथ अपने रिश्तों को जोड़ते हैं तो फिर शहर भी आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए आपके दोनों के सवालों के जवाब में मुझे यही कहना है कि इस शहर को एक प्यार की, साक्षरता की ज़रूरत है, और वो जो प्यार है ना, वो बंबई शहर की प्रकृति के साथ प्यार की ज़रूरत है, उस साक्षरता की, उस लिटरेसी की ज़रूरत है। हाँ, यस। Good evening, sir. This is Professor Akshay Dilip Ambedkar. I'm the great grandson of Mr. B.R. Ambedkar. So I wanted to ask you that what is the primary stage to start all these things, what you are talking about, Jang Jungle Mission? The second question of me is, how does population affect Jal Jungle Zameen Mission? So the main problem is population in this country. The population is increasing day by day, and that's the reason we are cutting the trees, mangroves and everything. The development is for the people, and the more the people, the more the trees and the environment and ecological system will be getting affected. So how do we see all these things? Partly you are right. Ki due to the population, the pressure is coming on the natural resource. But this is not fact. Our greediness, anti-nature, industrialization, business, और हमारी लालच, ग्रीडीनेस, इसके कारण हम हमारे नेचुरल रिसोर्स को सिंक कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस
इसलिए है कि हम किसी की ग्रीड को पूरा करने में उसको रोक नहीं रहे हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हुए डर रहे हैं। तो जब हमारे मन में डर होता है तब हम डिसिप्लिन्ड नहीं रहते। यदि हमें डिसिप्लिन बनना है तो सबसे पहले अपना डर निकालना पड़ेगा। यदि हमारे अंदर डर रहेगा तो हम ये प्राकृतिक संसाधनों के, जल जंगल जमीन के संरक्षण के काम में सफल नहीं हो सकते। हाँ श्वेता। हाय, माय नेम इज श्वेता झुंझुनवाला। आई एम अ मुंबईकर एंड भाई जी को मैं जानती हूँ पहले से। तो भाई जी, हम लोग ने यात्रा की थी 3-4 साल पहले। तब आपने देखा था कि नदी एकदम सूख गई थी और वहाँ कचरा भरा पड़ा था। अब वो कचरा उससे डबल ट्रिपल और हो गया है, कचरा बढ़ ही रहा है, कम होने का तो सवाल नहीं उठता है। मेरी विनती है आपसे कि आप एक फिर से यात्रा करें उस पर अटेंशन लाने के लिए। बिट्टू, मैं तो यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कभी भी कहोगे ना, रात को कहोगे ना, तो मैं सुबह आ जाऊँगा। मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं इस प्रकृति से बंधा हुआ हूँ। तो इस प्रकृति का जो भी काम जहाँ भी मुझे दिखता है, मिलता है, मैं बिना बुलाए के भी चला जाता हूँ। इसलिए जो श्वेता ने कहा, मैं उस यात्रा के लिए तैयार हूँ, पर मेरे अकेले के यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि लोग तैयार हों कि भाई चलिए हम अपनी ये जो क्राइसिस है, ये जो मैंग्रोव की क्राइसिस है, ये जो हमारे सामने इस शहर के वेस्ट की क्राइसिस है, इस क्राइसिस से निपटने के लिए हम एकजुट हैं, तो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। आप रात को कहेंगे, मैं सुबह यहाँ हाजिर रहूंगा। हाँ जी। राजेंद्र जी, आप आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो एक सीड डाल दिया है, बीज डाल दिया है हमारे दिमाग में कि भाई कुछ मुंबई के लिए करना चाहिए, कुछ प्यार से, लगाव से, ये पानी से और जंगल जमीन से हम ये नाता जोड़े। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है स्मृति कॉपीकर जी से, बिट्टू जी से, स्टालिन जी से, आपके गाइडेंस में, आपके आशीर्वाद से हम बम्बई में एक मूवमेंट चालू करना चाहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पे हम दबाव डालें कि कोई भी ये जो डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रकृति का नाश न करे। तो स्मृति जी, आपका जो आप अगर आशीर्वाद दिए, हमें गाइडेंस दे, तो हम ये मूवमेंट चालू करना चाहते हैं बम्बई के लिए, एक यूनाइटेड मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। जरूर, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, इनके साथ आप सबके साथ हूँ, लेकिन मैं एक शब्द की परिभाषा बताना चाहता हूँ। देखो, जिसे आप डेवलपमेंट कह रहे हैं, ये डेवलपमेंट केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर लेके आ रहा है। तो क्या इस देश में यही डेवलपमेंट का फिनोमिना था? क्या यही डेवलपमेंट कहा जाता था? नहीं। इस देश का जो डेवलपमेंट का फिनोमिना था, वो इस प्रकृति के साथ था, और इस प्रकृति के साथ वो लंबे समय तक चला। चरे वेती आदि अनंतः, जहां जिस विकास की ना शुरुआत है ना अंत है, और वो चलता रहता है, वो कभी मरता नहीं है। ऐसा विकास, उस विकास को क्या कहेंगे? अब उस विकास का नाम जो है, वो हिंदुओं ने अपना नाम दे दिया है, उसको कहते हैं सनातन विकास। ये सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है, ये सनातन तो एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस, प्रक्रिया का नाम है, और वो प्रक्रिया जो कभी ना मरती हो, क्योंकि हम लोग इस नेचर के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये नेचर खुद रिजुनेट होती है, खुद नई बनती रहती है, कभी मरती नहीं है। तो जिन लोगों का विश्वास इस आस्था में था, वो यदि आप देखें कि भारत में विकास का क्रम कैसा है, भारत के विकास का क्रम है, एक सबसे लंबा काल है जिसको भारत के लोग सतयुग कहते थे। सतयुग का मतलब कुछ और नहीं था, सतयुग का मतलब था जब प्रकृति और मानव, इन दोनों के बीच एका था। प्रकृति की आवाज मानव जानता था, और मानव के मन में लालच नहीं था।
मानव के मन में कुछ अपने आप को बनाने का एम्बिशन नहीं था, आकांक्षाएं नहीं थी, तब हम लोग उसको सतयुग कहते हैं। इंसान प्रकृति की आवाज सुनता था, जानता था, पहचानता था और उसके साथ जीता था। तो सबसे लंबा काल जिसे हम कहते हैं वो सतयुग है, और वो हमारी आकांक्षाओं, लोभ लालच से मुक्त था। फिर इस किसी के मन में राजा बनने का भाव आया और किसी के मन में विद्वान बनने का भाव आया। ये दो भाव सबसे पहले आए इंसान में कि मुझे राजा बनना है, और राजा बनने के लिए उसको एक विद्वान भी चाहिए था, क्योंकि विद्वान के शास्त्र के लिखे बिना राज नहीं चलता है, इसलिए संविधान चाहिए था। तो भारत में जिसे हम संविधान नहीं कहते उसको हम वेद कहते हैं। तो भारत में विद्वानों ने वेद लिखने शुरू किए और किसी के मन में राजा बनने का राजा बन भी गया। जब ये दो बातें आई, विद्वान बनने की और राजा बनने की, तो हमारे कालचक्र में नेचर का एक पैर टूट गया और उसको हम त्रेता काल कहने लगे। लेकिन उस त्रेता काल में भी जो राजा था वो अपने आप राज नहीं चलाता था, वो अपनी प्रजा की सुन के, प्रजा की मान के सबके लिए राज चलाता था। त्रेता काल में मैं एक ही उदाहरण देता हूं, राजा जनक। राजा जनक अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, और उसने महल से निकलना बंद कर दिया था, बस पत्नी के साथ रहता था। तो लोगों ने कहा, अरे ये कैसा राजा? राजा के लिए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, हाथी घोड़े, इंसान सब बराबर होते हैं, ये तो अपनी पत्नी के ही चक्कर में लगा रहता है। तो इंसान भी नाराज हुए और प्रकृति भी नाराज हुई। द एंगरनेस ऑफ द नेचर स्टार्ट। और सबसे पहले ड्राउट राजा जनक के काल में हुआ, अकाल पड़ा। राजा जनक के काल में जब अकाल पड़ा तो प्रजा सारी इकट्ठी होकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और राजा जनक से कहा, ओ राजन, तू राजा है ना, तो राजा की तरह रहे। तो बोला, क्या करूं? उन्होंने कहा, तू और तेरी रानी दोनों महल छोड़ दो, और महल छोड़ के दोनों मिलके हल चलाओ। कौन कह रहा है? प्रजा कह रही है। तुम आज के राजा को ये कह सकते हो? कोई कह सकता है कि आज के राजा को ऐसे? तो माफ करना राजा, बस मैं जल्दी से जवाब देता हूं, बस 1 मिनट इसको पूरा करता हूं, मुझे आधा मिनट दे दीजिए। तो राजा जनक रानी के साथ हल चलाता है और रानी और राजा को दोनों को बहुत पसीना आता है और उनके शरीर से निकलने वाली पानी की बूंदें मिट्टी में पड़ती हैं, और मिट्टी में जैसे ही पड़ती हैं तो मिट्टी के अंदर जो बीज था वो जर्मिनेट होता है और नेचर हरियाली से आनंदित होने लगती है। इसको त्रेता काल कहते हैं। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्यूशन नहीं ढूंढे जा रहे थे। कहां ढूंढे जा रहे थे? नेचर में। आज तुम्हारे ड्राउट कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल एक्सीडेंट लगी हुई है, वो ड्राउट कंट्रोल डिपार्टमेंट बना है। उस जमाने में वो नहीं था। फिर एक द्वापर आता है, कंस का राज है, कंस लूटपाट करता है। राजा जनक के काल में लूटपाट नहीं थी, कंस के काल में लूटपाट होती है, और लूटपाट से लोग सब त्रस्त है। तो एक इंद्र नाम का एक आदमी है, वो भी इससे बहुत गुस्से में है, लेकिन उसको ये विज्ञान आता था कि तुम्हारे बंबई से जाने वाला बादल, बे ऑफ अरेबियन सी का बादल और बे ऑफ बंगाल का बादल, उन दोनों को टकरा देने का विज्ञान उसको आता था। तो उसने गोवर्धन पर्वत के ऊपर दोनों बादलों को टकरा दिया और बाढ़ आई भयानक और लोग डूबने लगे। तब कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने कहा, जल्दी से तुम अपनी गाय लेके गोवर्धन पर्वत पे आ जाओ। तो फ्लड का सॉल्यूशन कहां ढूंढा जा रहा है? पहाड़ में ढूंढा जा रहा है। पहाड़ पे ले जाके एक भी गाय नहीं मरी और एक भी ग्वाला नहीं मरा। अभी क्या है? अभी कलयुग है। इस कलयुग में आपके सॉल्यूशन
कंप्लीटली आर्टिफिशियल है। इसीलिए आपका जो डेवलपमेंट है उसमें डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट और जो डिजास्टर है वो शामिल हो गया है। तो आपको जरा सोच समझ के इस आर्टिफिशियल एक्सीलेंस के साथ इमोशनल एक्सीलेंस को उसके ऊपर ले आओगे तो तुम बंबई के हालत बदल लोगे। बस। Rajendra ji, thank you for a very inspiring presentation. My name is Naresh Fernandez. I'm a journalist. As you pointed out, the executive is now more supreme than the court. At the same time, civil society is under enormous attack. In these circumstances, what is an effective strategy to resist these development plans? नमस्ते सर जी, मैं नवी मुंबई से तानाजी फंसे बोल रहे। नवी मुंबई में एयरपोर्ट हुआ है। एयरपोर्ट होने से वजह से उसके बगल में एक नदिया थी, वो पूरा चेंज करके उसमें मैंगो ट्री 500 एकड़ था, वो पूरा ख़त्म करके नदी का पात्र बना दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, नवी मुंबई में मेट्रो आ रहे हैं, रोड आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया है नवी मुंबई में जो मैंग्रोव ट्री है, मैंग्रोव ट्री ऐसा है कि 750% कार्बन डाइऑक्साइड जो खींच के लेता है वो ख़त्म होने के मार्ग में ज़्यादा है। और दूसरा जो बाहर से 7 समुद्र से पक्षी आता था वो ये साल में कुछ भी नहीं है, वो साइड में कुछ भी नहीं है। आप सवाल पूछे प्लीज। तो इसके लिए ये नई मुंबई में ये जो एयरपोर्ट आया उसके वजह से एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, चलो भाई। ओके, हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण बोरकर, और मैं मुंबई के पानी हक समिति इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जो पिछले 16 साल से पानी अधिकार के लिए काम कर रहा है। अभी मुंबई में जो लोगों, मेरा सवाल ये था कि मुंबई में अभी लोगों को पानी के लिए तो गवर्नमेंट नहीं कहती है, बहुत सारे हर्डल्स है जो पानी मिलने के लिए। एक तरफ से 1.5 करोड़ जनता है, उनके लिए पानी दूसरे शहर से शहर में पानी लाया जाता है और कहता है कि पानी नहीं है हमारे पास, और बिस्लरी जैसे ऐसे कंपनियों को पानी दिया जाता है। और साथ ही साथ समंदर का पानी मीठा करने का डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट भी लाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक बार तो 2009 में प्राइवेटाइजेशन को पानी का प्राइवेटाइजेशन रोका था, और अभी इस तरीके के प्रोजेक्ट लाकर मुंबई में प्राइवेटाइजेशन की एक बीज रोया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं? ठीक है, बात करेंगे। हाँ, चलिए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैलिन और फिर राजेंद्र जी सभी का जवाब देंगे। सर, एक इतना ही कहना था कि अभी मैंने सुना कि लोक संख्या ज़्यादा है इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। कार निकोबार में कोई पॉपुलेशन का इशू नहीं है, वहाँ जाकर 20 लाख पेड़ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि आपके पॉपुलेशन की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, इसको आप गलत मानते हैं या नहीं? दूसरी बात कि इतना सारा प्रोजेक्ट्स जो आ रहा है, क्या लोगों से पूछ करके लाया जाता है? जी नहीं। तो ये यानी वन वे कम्युनिकेशन है, यानी उनके मन में जो आया वो करेंगे और लोगों को ये बताएंगे आपके लिए कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि जो रेलवे में कितने लोग जा रहे हैं और मेट्रो में कितने जा रहे हैं, यानी ये जो नैरेटिव है इसको कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करना पड़ेगा रोकने के लिए कि आपके लिए हो रहा है, पॉपुलेशन के लिए हो रहा है, ये गलत है। असलियत में उनका जो सवाल है ना वो वहाँ से शुरू करता हूँ। हमें जो इस वक्त की परिस्थिति है, इस वक्त की परिस्थिति में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फ्रेमवर्क में हमें सॉल्यूशन सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो सचमुच इस देश की जनता के हित के सॉल्यूशन नहीं है। वो कुछ एक खास लोग हैं, चंद लोग हैं, उनके लिए वो सॉल्यूशन का सिस्टम बना है। और उस सॉल्यूशन के सिस्टम में जो प्लानिंग हो रही है आपकी, जो आपका इस वक्त जो चल रहा है, वो उनके ही वेस्टेड इंटरेस्ट में वो गति से आगे बढ़ रहा है और हम जैसे लोग पीछे जा रहे हैं, पीछे धकेले जा रहे हैं। अब ऐसे हालत में यदि हमें खड़ा होना हो तो फिर कोई एक समूह खड़ा होगा तो कामयाब नहीं होगा। हम सबको
सारे एस्पेक्ट को जोड़ के इंटीग्रेटेड करके स्ट्रगल का वातावरण बनाना पड़ेगा, तब जो आपका सवाल है उस सवाल का जवाब मिलेगा। अभी आज इस समय उस सवाल का जवाब यहाँ बंबई में खड़े होकर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं कि उस सवाल का जवाब हमारे पास है। लेकिन उस सवाल का जवाब तभी होगा जब आप अपनी नेचर को और कल्चर को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग रख के अपना डिजाइन बनाओगे, तब आप आगे जाने का रास्ता ठीक से निकाल सकोगे। मैं उनके सवाल पे आता हूं। ये जो प्राइवेटाइजेशन है पानी का प्राइवेटाइजेशन तब शुरू हुआ जब पहले हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की सप्लाई थी उसको बदनाम किया गया कि वो पीने के लायक नहीं है, और उसको जितना भी तरीके से हम बदनाम कर सकते थे, जैसे अंग्रेजों ने अपने काल में हमारे तालाबों को बदनाम किया था। और अंग्रेज कहते थे कि ये हिंदुस्तानी लोग सपेरे हैं, वो स्टैग्नेंट वाटर पीते हैं, इनको पानी की समझ नहीं है। लेकिन वो अंग्रेज मूर्ख था। उसके देश में सूरज, हवा और मिट्टी, इनके योग से जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारे तालाबों में होती रहती थी, उसके कारण हमारे तालाबों का पानी बहुत ही हेल्दी था, और वो पानी हमारा कभी भी यूरोप के और खासकर इंग्लैंड की तरह का पानी नहीं था, उससे बिल्कुल अलग था। इसलिए उस पानी की बहुत बदनामी की गई, और वो इसलिए की गई थी कि वो भारत के कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी उनकी कि जो इंडिया का कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए इनके सिस्टम को बदनाम करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो हमारा पानी का प्राइवेटाइजेशन, ये जो वाटर राइट का जो सवाल था, वो बदनाम करके बहुत कामयाब हुए। अच्छी बात है आज इस हॉल में तो प्लास्टिक की बोतल नहीं है, नहीं तो जिस भी हॉल में जाते हैं वो जो मेहमान वहाँ आते हैं उनकी टेबल पर सबसे पहले पानी की प्लास्टिक की बोतल सजाई जाती है। तो कम से कम हमारे आज के जो आयोजक हैं उन्होंने ये बड़ी समझदारी की कि इस हॉल में प्लास्टिक की बोतल नहीं आने दी। इससे पता चलता है कि उनकी समझ बहुत गहरी है, वो जानते हैं कि हमें क्या जाना है, हमारा रास्ता किस तरफ है। इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई है, इस प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई को अब थोड़ा अलग तरह से लड़ना पड़ेगा। अब तुम्हें केवल लड़ने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें मेरी तरह कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के मॉडल बनाने पड़ेंगे। मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले 50 सालों में 10,800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पानी का प्रबंधन करके क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन का मॉडल किया और लाखों लोगों को पीने का शुद्ध पानी दिया। तो एक तरफ हमें लड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ कुछ रचना का काम भी करना पड़ेगा। जब तुम रचना का काम करोगे तो वाटर लिटरेसी अपने आप आपको आगे लेके जाएगी। स्टिल जो हमारे दोस्त का सवाल है, ये सवाल थोड़ा बिल्कुल सरल है, आसान है। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। मैंने तो अपनी राय उनके जवाब में बता दी थी कि पॉपुलेशन का बढ़ना ये हमें गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे जो बढ़त है वो नेचुरल रिसोर्स के लुटेरों की संख्या घट रही है, लेकिन लूट का दायरा बढ़ रहा है। पहले लुटेरे काफी होते थे, अब लुटेरों की संख्या भी कम हो गई है, लेकिन लूटने का हथियार बड़ा हो गया है। लूटने का जो हथियार है वो सेंट्रलाइज करके ज्यादा चीजों को लूट रहा है। इसलिए भाई पहले थोड़ा बहुत हम अपनी अदालत पे भरोसा करते थे, अब तो वो भी उठ गया। लेकिन हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। वी हैव सम सीड ऑफ होप। हमें अपने आशा की किरणों और आशा के बीजों से अभी भी लड़ना है और जीतना है। जल जंगल जमीन उसकी है,
जो उसको बचाएगा, जो उस पर जीता। Thank you very much. There's a lot to take away from the last hour and a half. To close this meeting, I'm going to now invite Samir De Monte to offer a vote of thanks and hope to meet many of you or all of you at the 5th memorial lecture. Samir? Thank you, Smriti. We would like to thank the Mumbai Marathi Patrakar Sangh. Thank you, Sachin sir, for hosting this event right from the very beginning, every single year. Thank you. The Mumbai Press Club, Buddhi or Participatory Urban Design and Development Initiative, and PK Das, thank you for always contributing to this event. The Sanctuary Nature Foundation with Bittu Segal, Vanashakti with Stalin and his team, A Question of Cities, Smriti Kopikar and her team, thank you. And most of all, to our magician, Rajendra Singh ji, thank you not only for this lecture, but for all the miracles that you have brought into being in your life. I think these achievements are a gift to the people of India. They're a gift to the flora and fauna of India and a gift to the entire world. Stalin pointed out that in all these court cases, the environment is a silent petitioner. But I feel that it is no longer voiceless. I think through your body and soul, it's as if nature itself has come alive and is speaking to our hearts. So thank you very much.